अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? मेरी आवाज़ आ रही है सबको? Yes, sir. ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। वेलकम मैम तुबा, डॉक्टर साहब। Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। डियर टायरा के नाम से कोई ज्वाइन हुआ है। वी ऑलवेज रिक्वेस्ट टू द पीपल टू ज्वाइन विद द ओरिजिनल नेम सो दैट वी विल रिकॉग्नाइज ईच अदर। हाफिज मोहम्मद सैफ रहमान साहब, गुलाम मुर्तज़ा साहब, thank you very much for joining this session. Guys, today is a special call for a special cause, which is uh, dyslexia, as you have seen on our poster. Uh, Welcome, Madam Tayyiba. Thank you very much for joining. Kindly try to join with the original name so that we recognize each other. It is very important. All right. So today we are going to introduce with a very uh, crucial subject, a disease which is not well known in the society. You have seen a movie in an Indian movie on the topic where the character says that to the teacher that the uh, letters are dancing, and nobody understand and everybody laugh, and at the end of the day the teacher recognized his problem and he introduced his parents that your child is in a problem, physical and actual problem, and there is solutions. And end of the day he give him some assignments about some special task which he was the best among the people, and he proved that these type of children are not deficit. They have a special sense, and they can uh, do the things that they can turn the impossible to possible with their efforts and these things. So this topic is very important, and every parent, especially parents, has to know it, has to recognize it, that why our child is behaving like this. Is there any original problem, or our child is doing some type of uh, imitation or something? So it is very important because sometimes we push the children to do the things, and they are not capable to do it naturally, and they have some medical problem, they have some physical problem, they have some what you say it, other problems, invisible problems. So it is very important for us to know all of these things. So today's topic, which is selected by Dr. Tuba, Ma'am Tuba, and I appreciate that she tried to bring things on the face of the people so that they understand what mistake we are doing with our children. What is the thing which is obstacle in the progress of our children? They cannot read well, they cannot study well, they cannot understand the things which are normally, I mean to say. So this topic is very much important, and I believe that everybody you will enjoy it, and you will know the things which you did not know before. So it is 9:05, and the people did not join still. We are waiting for the people to join. Otherwise, we will take the advice of a speaker and Dr. Saib if we start or we wait. जी डॉक्टर साहब, क्या कहते हैं आप? हम स्टार्ट करें या वेट करें? जी मैम, तो क्या ओपिनियन है आपका? थोड़ी देर वेट करें? देख लें सर, जिस तरह आप कहते हैं। अगर आप कहते हैं तो 9-10 तक वेट कर लेते हैं या ओके, स्टार्ट कर लेते 3-4 मिनट और वेट कर लेते हैं, बिकॉज हैं। जी सर। जी। जी, हम लोग चाहते हैं कि
जो लोग जितने ज़्यादा लोग इसको ज्वाइन कर लें फ्रॉम द स्टार्टिंग, बिकॉज इफ यू विल नॉट ज्वाइन फ्रॉम द स्टार्टिंग यू विल नॉट अंडरस्टैंड द roots of the topic. So from the beginning, it is very important for us to join and to understand what is the basic problem and what is this disease and where it comes from and how we can cure it, how we can uh, what you say, prevent from it. So these things are very important to understand. Okay, you guys are attending the sessions. Some people are regularly, mashallah. But the problem is that we don't recognize ourselves why we are here, why we are trying to make this community, why we are, what strength we want to collect from this platform, on this platform, I mean to say. So the basic thing is that our country is, I said it in so many times in so many sessions that this country is heaven on the earth. But the problem is that we have some uh, problem. We have some weakness, which is not the expenses, which is not the market price. The basic problem which we have to recognize and we have to know it and we have to rectify it is the unemployment. So lot of people in our society, they are doing nothing. They are educated, they have spent their 15, 17 years in the education and they have spent a lot of money, but they are doing nothing. And they are capable to do a lot of things, but they are talented and they have skills and everything, but I don't know what we are waiting for. I believe that this platform is the best choice for the people who want to do something, who want to turn the impossible to possible, because this is zero investment business and a very big career. You cannot imagine how much you can earn out of this business, and how much you can grow and develop yourself through this business. It is a very big miracle that we have this type of opportunity in front of us and we are ignoring it. So I request to the people, whoever is joining our call, that please do concentrate on the things that we have a motive here and we have a target here. We want to bring the people up to the employment. So please do concentrate on the business side and explore the videos on YouTube or social media, wherever you like it. And please join the sessions when we do the session, or we do the presentation or something for the business. Please join it and understand what we want to say, what actually is the basic theme of DXN, and what we want to deliver to you people is to understand and implement these things in your life, so that we will make the things easier for us. So it is 9:09. We have to wait for 1 minute more. uh, the people who understand the DXN and the profile, products and marketing plan, please raise your hand if somebody understands. I believe the people present here does not know any type of theme about DXN. They don't know what is the sort of business platform is DXN and how they can do this business, and how they can succeed in this business. I suggest to everyone to go to our portal and see the success stories. There is a lot of success stories from a lot of people. Some people are educated, some people are not. Some people are from medical line, some people are not, and they have made the success. Even one maid from India, she was working in the homes and she was very poor. She achieved the rank of brand ambassador, which is the biggest rank in DXN.
and after that you have to count the money in crores, not in thousands, not in millions, in billions. So it is not impossible that we can do it. If she can do it, we can also be. We are also capable to do that. But the thing is that we are not concentrating on that side. We are joining the sessions. We are doing the sessions. We are doing our efforts, and we at the end of the day, we are taking some knowledge and we are scrolling back. So I request everybody to see this side. This side is very strong and a very positive sign for us to bring our youngsters, our elders, our children on this platform, so that they can earn according to their strength. So now it is 9:12. हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं जी। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं आप? मैम तो वह मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। आप डिस्कनेक्ट हो गए हैं। One second, let us wait for the speaker. She disconnected due to some technical reason, I believe. उनका नेट डिस्कनेक्ट हो गया या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई है, तो 1 मिनट इंतजार करते हैं। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस साइड को देखें, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइड है और इसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हो सकते हैं। हेल्थ बेनिफिट्स तो हैं ही हैं DXN के साथ। इसमें हम लोग अपना बिजनेस भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं। जी मैम तो स्टार्ट करें, मैं अपना स्क्रीन शेयर करूँ आपके लिए? Yes, sir. ओके, गिव मी 1 सेकंड प्लीज। Let me close my mic from there so that I will not disturb you people. यस मैम, तो मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है, आप प्लीज स्टार्ट करें। I believe Mantuba is disconnected again, so let us Assalamu share for alaikum. 1 minute. जी Ji, assalamu alaikum. I am Tuba Shahid and I'm a psychologist, and you say that I'm the mental carer for all the ages. ठीक है, mental health carer. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं और आई एम आल्सो मेंबर ऑफ DXN। मैं थैंक्स कहना चाहूँगी मैम एंड सर का, जिनकी वजह से आई एम हेयर और टू प्रेजेंट सच अ नाइस वर्कशॉप और वेबिनार आप कह दें अबाउट अंडरस्टैंडिंग डिसलेक्सिया। अब अगर हम इस टॉपिक को देखें तो इसका ताल्लुक हमारी लर्निंग से है, मतलब ये इट्स अ लर्निंग डिसेबिलिटी। ठीक है, इसको भी एज ए DSM, अगर हम DSM के थ्रू देखें
तो ये एक न्यूरो डाइवर्जेंसी है, यानी कि न्यूरो डेवलपमेंटल हमारा कहें कि डिसऑर्डर है। ठीक है, एक न्यूरोटिपिकल बच्चे होते हैं जो एक नॉर्मल तरीके से जिनकी लाइफ पैटर्न चल रहा होता है, लेकिन एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है जिसमें बच्चों को कोई ना कोई डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो इस जो लर्निंग डिसेबिलिटी आता है इसके अंडर एक टर्म आती है डिसलेक्सिया, जो कि बहुत मिसअंडरस्टूड है। पेरेंट्स इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते स्टार्ट में। ये स्टार्टिंग एज से आपको पता है प्री स्कूल में हम सिर्फ साउंड्स अ ब ख ये साउंड्स निकालते हैं। इन बच्चों को कम्युनिकेशन स्किल्स में इश्यूज नहीं होते। ठीक है, इनको बोलने में, जिस तरह ऑटिस्टिक मैंने पिछली दफ़ा कहा था बच्चों को कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, नो, इन्हें कम्युनिकेशन स्किल्स में इशू नहीं होते। इनका बेसिक इशू होता है रीडिंग, राइटिंग एंड जब फोनिक्स में, यानी कि जब वो स्पीच, आपके स्पीच इश्यूज नहीं होते, जस्ट ये कि रीडिंग में ज़्यादा इनका होता है, राइटिंग में इनका बहुत ज़्यादा जो इश्यूज आप कहते हैं ना जिस तरह वो आते हैं वो चीज़ आते हैं, और स्पेलिंग्स में। ठीक है, यानी कि ये स्पेलिंग्स को आगे पीछे कर देते हैं। अभी मैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड कराती हूँ कि लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या होती है। सबसे पहले हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, पेरेंट्स को भी ये चीज़ करानी है, जितने भी पेरेंट्स भी सुन रहे हैं, कि हम इस जो डिसऑर्डर है लर्निंग डिसेबिलिटी, इट्स अ लर्निंग डिसेबिलिटी। ठीक है, लैंग्वेज डिसऑर्डर्स में ये लर्निंग डिसेबिलिटी में जो है ये अंडर आता है। ठीक है, और DSM-5 के अंदर ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर ये आजकल काउंट होता है। और ये क्यों हाइड हो गया है डिसलेक्सिया, क्योंकि इसको ऑटिज्म और ऑटिस्टिक बच्चों के साथ और ADHD के साथ मिसमैच कर देते हैं। हाँ, जिन बच्चों को ऑटिज्म होता है उन्हें डिसलेक्सिया हो जाता है, या जिनको डिसलेक्सिया होता है वो ये मर्ज हो जाती हैं, बट लेकिन इट्स डिफरेंट टाइप ऑफ, आप कहें कि डिसऑर्डर है। तो जब लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज में जो सपोर्ट करती हैं वो चीज़ें लैंग्वेज डेवलपमेंट में, हमारा कॉग्निटिव हेल्थ है। ठीक है, और हमारे जो सोशल एस्पेक्ट्स हैं वो चीज़ें हम चीज़ में हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, तो हम जब सबसे पहले लैंग्वेज स्टार्ट करते हैं तो वो साउंड्स के साथ और गेस्चर्स के साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिसमें वर्ड्स भी आते हैं, सेंटेंसेस भी आते हैं। ठीक है, आप जब भी लैंग्वेज को, आप देखें, आप बच्चे की लैंग्वेज को जब सपोर्ट करें ना, तो उसमें आप बच्चे के साथ, हमारे जब बच्चे के साथ एक, देखिए, रिसेप्टिव लैंग्वेज होती है। ठीक है, आपको सबको पता है, मैंने बताया था पहले, एक एक्सप्रेसिव होती है। बच्चे इसमें डिसलेक्सिया में रिसेप्टिव में तो वो सब कुछ प्रिसीव कर लेते हैं, लेकिन जब एक्सप्रेसिव लैंग्वेज की आती है वो चीज़ भी एक्सप्रेस कर लेते हैं। लेकिन जब बात आती है रीडिंग की, राइटिंग स्टेज पे जाते हैं, हम स्टार्ट में इस चीज़ को गेस नहीं कर सकते। ये चीज़ हमें गेस होती है आफ्टर 1 ग्रेड, जब बच्चा एक रीडिंग की टेम्परामेंट में आता है, और ये फिर बहुत सोशली, मतलब अलोन फील करते हैं, गैदरिंग्स में नहीं जाते। ठीक है, ये अगर आप कहीं कहें कि आप बच्चे को खड़े होके कहीं स्पीच करें, तो उसमें ये थोड़ा सा, मतलब जो स्पीच को, प्रॉब्लम को, मतलब कम्युनिकेशन वैसे तो कर लेते हैं, मामा आप मुझे ये दे दो, बाबा आप मुझे ये दे दो, या आपा आप मुझे ये दे दो, किसी को बाहर कह दें हेलो हाउ आर यू, बट लेकिन जब इस चीज़ को वो एक्सप्लेन करने लग जाते हैं अपनी रीडिंग के थ्रू, अपनी राइटिंग के थ्रू, तो फोनिक्स को वो मर्ज कर लेते हैं, जैसे बा को डा के साथ। ठीक है, ला को जा के साथ। ठीक है, यानी L और J, ल जा, M को N के साथ, इन साउंड्स को वो मतलब मिसमैच कर लेते हैं। तो इसके बहुत ज़्यादा, जिस तरह लिखा हुआ है कि कॉजेस भी होते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, और जैसे ये जेनेटिक्स होती है, आपकी फैमिली हिस्ट्री में पाई जाती है, आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स इस चीज़ को आगे लेके जाती हैं। मतलब अगर आपकी फैमिली में किसी बैक पे किसी बच्चे को है, तो वो यकीनन किसी ना किसी को आगे जाके ये चीज़ के इशू हो जाता है। किसी बच्चे को ऑटिज्म है, या किसी बच्चे को ADHD है, या किसी बच्चे को इस तरह का कोई इशू है, तो वो इस डिसलेक्सिया से मर्ज आउट होके हो जाता है, बट लेकिन इट इज़ अ सेपरेट डिसऑर्डर। ठीक है,
तो अगर अगर आप बहुत ज़्यादा देखें, अगर आपके बच्चे का एक लैंग्वेज पैटर्न सही नहीं चल रहा, ठीक है, वो साउंड के साथ स्टार्ट करता है, फिर वो गेस्चर्स करता है, वर्ड्स करता है, सेंटेंस करता है, आप अपने बच्चे को हेल्प आउट करते हैं, बातें करते हैं, उससे रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन आपको कहाँ पे वरी होना चाहिए? अगर आपकी चाइल्ड की लैंग्वेज डेवलपमेंट के साथ आप वाकई ही वरी हैं और आप समझते हैं कि उसके साथ प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको अपने प्रोफेशनल हेल्थ केयर को ज़रूर उनसे रब्ता करना चाहिए, ठीक है। आपको आजकल तो इतना ज़्यादा अवेयरनेस है कि आपको बिल्कुल भी इस चीज़ को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, जहाँ पे उनका स्पीच, जहाँ पे आप समझ रहे हैं कि वो, जब आप लिखवाने बैठे हैं कोई वर्ड, ये शुरू में तो नहीं आपको पता चलेगा, लेकिन आप जिस तरह कहते हैं लिखो, अब उनकी मैथ्स की टीचर ने बताया, ठीक है, इस एक बच्चा है, उसकी मैथ्स की टीचर बुला रही है कि ये प्लस माइनस, ये इस चीज को मर्ज करता है, या ये उसमें वर्ड्स, ये मैथमेटिकल इनका माइंड नहीं होता, ये मैथ्स में बहुत गड़बड़ करते हैं। देखिए, मैं आपको ब्रेन की एक डेवलपमेंट बताती हूँ। जैसे इसमें थोड़ा सा ये बता दूं कि ये ब्रेन स्ट्रक्चर डिफरेंसेस होते हैं, जिस तरह लिखा है, आपके कोई भी डिसऑर्डर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मदर्स जो है वो सब्सटेंस यूज कर रही है, फॉर एग्जांपल अल्कोहलिक है, एंटी डिप्रेसेंट्स यूज कर रही है, या कोई उसको इंजरी हो गई है, या कोई फीटल डिफेक्ट्स हो गए हैं, या कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो गई हैं, उसकी वजह से ये कॉजेज तो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जेनेटिक्स फर्स्ट प्रेफरेंस पे आता है कि ये जेनेटिक ही होता है, जो आगे जितनी भी जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है ना, वो जेनेटिकली होते हैं, ठीक है। थ्रू मीडिया, थ्रू वर्चुअल, आप कहें वर्चुअली ये नहीं होता, वर्चुअल सिर्फ एक जो मैंने बताया था ऑटिज्म या या ADHD, हाइपर एक्टिविटी आ जाती है, बट ये आपकी जो है इट्स नॉट वर्चुअल, ठीक है, इट्स, ये एक होती है, एक जो आजकल बहुत हाइड हुई हुई है, बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर्स हो गए हैं, तो ये बहुत पीछे चली गई है। तो ये जैसे सर ने बात की थी तारे ज़मी के, इट्स अ मूवी थी, वो सॉरी, ये आमिर खान की, ठीक है, उसने ये चीज़ प्रेजेंट की थी, एक बच्चा दिखाया था, वो आर्ट में बहुत अच्छा है, ठीक है, वो साउंड्स जिस तरह प्ले कर रहे हैं, खेल रहे हैं, उसको वो नजर आ रहे, ड डी को ब, मतलब वो साउंड्स उसके उसके माइंड में खेल रहे हैं, वो बैठा बैठा ओवर थिंक कर रहा है, वो सोच रहा है। लेकिन आमिर खान ने ये चीज रियलाइज कर ली कि, और उसने ये बात इंटरव्यू में कही थी कि माई चाइल्ड इज आल्सो सफरिंग फ्रॉम दिस डिसऑर्डर। तो मैंने शुरू में उसको रिकग्नाइज नहीं किया, लेकिन बाद में जब मैंने उसको पहचाना, तो ये रियल बेस्ड स्टोरी है, ठीक है। इसी तरह की अगर हम स्टोरीज देखें तो बहुत ज़्यादा सामने आती हैं। तो चाइल्ड का जो मैं आपको बता दूं, जो लेफ्ट का हिस्सा होता है ना, लेफ्ट साइड ब्रेन, वो मैथ्स, लॉजिक, एनालिसिस, ऑर्डर और स्पीच के लिए यूज होता है। जो इनका वीक होता है, वहां पे इनका डिसऑर्डर होता है। जो हमारा राइट साइड होता है ना, वो आर्ट, म्यूजिक, कलर्स, आइडियाज और फन के लिए होता है, उस चीज में दे आर वेरी एक्टिव। उनसे इनकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी का कोई भी ताल्लुक नहीं होता, ठीक है। अगर हम उनकी इंटेलेक्चुअल, अगर हम कहें कि एक बच्चा डिसलेक्सिया का, उसे डिसलेक्सिया है, या उसे ये डेवलप लर्निंग डिसऑर्डर है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो इंटेलिजेंट नहीं है। मे बी वो आर्टिस्ट हो जाए। आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा जो आर्टिस्ट हैं और जो बहुत ज़्यादा रिनाउंड लोग हैं, मैंने तो एक चीज़ ऑब्जर्व की है, जिस तरह आइंस्टाइन था, या ये बहुत ज़्यादा जो सुपर सुपर पावर्स आप कहें, जो सुपरमैन होते हैं, आप इनको टर्म करें, बच्चे जो कहते हैं सुपरमैन, सुपर हीरोज, इनको कोई ना कोई, देखिए, एक नॉर्मल बंदा कोई भी चीज़ को डिस्कवर नहीं कर सकता जब तक उसमें कोई ना कोई पावर ना हो। ये अल्लाह की तरफ से एक पावर होती है, आप कहें, बच्चे में आगे बढ़ने की, इट्स अ पावर, इट्स अ पावर। मतलब ये एक बच्चे को ग्रूम करने के लिए, आप अगर उस बच्चे को अंडरस्टैंड कर जाएं, तो वो एक, उसमें आप कह दें कि वो हीरो बन सकता है, ठीक है। आप मोस्टली देखते होंगे कि जितने भी जो साइंटिस्ट गुजरे हैं, वो कोई ना कोई शिज़ोफ्रेनिया, ऑटिस्टिक, ADHD, आप हिस्ट्री निकालें,
डिसलेक्सिया मतलब मुख्तलिफ टर्म्स में आप निकालें, कोई ना कोई ये जो एक्ट्रेस हैं ये किसी ना किसी चीज़ का शिकार है और यही चीज़ इन्हें आगे डिफरेंट करती है। तो आप ये ना समझें कि इनमें इंटेलेक्चुअल डिफरेंस होता है, नो। अब आप अगर ब्रेन को लें तो उसमें देखिए, मैं आपको बताती हूँ, जैसे आपको इजी वे में समझाती हूँ। हमारा एक फ्रंटल लोब होता है, वो हमारी स्पीच एंड साउंड के लिए होता है, ठीक है। एक टेम्पोरल लोब होता है जो हमारा लैंग्वेज, जिससे हम साउंड, जिसे हम बोलते हैं, कॉम्प्रीहेंस करते हैं, ठीक है, वो चीज होती है। ये सारा लेफ्ट हेमिस्फीयर है, एक राइट हेमिस्फीयर होता है, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है। इट्स ऑल अबाउट, आई से लेफ्ट हेमिस्फीयर, ठीक है। एक पेरिटल लोब होता है, वो भी साउंड से रिलेटेड होता है। एक टेम्पोरल होता है, वो भी साउंड से होता है, वो साउंड से भी होता है और लैंग्वेज से भी होता है। तो ये सारी चीजें इनमें इनमें आप कहें कि इन चीजों में डिसऑर्डर होते हैं और ये चीजें हम मैनेज कर सकते हैं डिफरेंट तरीके से, ठीक है। और अगर देखा जाए ना, तो मैं आपको इसकी थोड़ा सा डिटेल आपको बताना चाहूंगी कि इसमें जो डिसलेक्सिया होता है ना, इसमें थोड़ी टाइप्स होती हैं। रैपिड, देखें, एक होती है रैपिड नेमिंग होती है, एक ऑडिटरी होती है, एक फोनोलॉजिकल होती है, एक सरफेस लेवल होती है, एक विजुअल होती है। थोड़ा सा आपको ये एक्सप्लेन करना चाहूंगी व्हाट इज रैपिड नेमिंग। रैपिड नेमिंग में ये होता है कि जो होता है वो फेमिलियर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, कलर्स, उनके लिए चैलेंज होता है। उसके साथ मतलब है कि ऑब्जेक्ट्स की नेम, स्लो नेमिंग ऑफ फेमिलियर ऑब्जेक्ट, वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को पहचानते हैं। एकदम देख के नहीं हम कहेंगे दिस इज अ कैट, वो एकदम देख के, ये होता है रैपिड नेमिंग डिसलेक्सिया। हम एक रैपिडली चीज़ों के नाम अगर उन्हें बता दें और उनसे कहें कि ये चीज़ बताओ, तो उनमें इसका थोड़ा सा डिसऑर्डर होता है। ये चीज़ थोड़ा सा मैं हाइपर एक्टिविटी और ऑटिज्म से ये रिलेट करती है, बट इट्स अ फैक्टर ऑफ अ डिसलेक्सिया। फिर ऑडिटरी, उनकी जो डिफिकल्टी सुनने की होती है, फोनिक्स साउंड, सबसे बड़ी जो इनमें फोनोलॉजिकल, यानी कि फोनिक्स को वो सही नहीं पहचान सकते, ब, ख, ड, उन सारी म, न, उन साउंड को वो सही, जैसे फ, ख, जैसे कैट को वैट, मतलब उनका, उनकी आगे पीछे हेर फेर होगी उनकी साउंड्स में। उनको जिस तरह कहना, डांसिंग साउंड्स, डांसिंग वर्ड्स, अल्फाबेट्स, लाइक दिस, आप यूं कहते हैं। एक होता है कि फोनोलॉजिकल डिसलेक्सिया, वही मैंने कहा, डिफिकल्टी इन स्पोकन वर्ड्स, ठीक है, एक सरफेस लेवल पे होता है। यानी कि आपको जो वर्ड को आप इजीली, होल वर्ड को मुश्किल होता है, इंस्टेड ऑफ डी कोडिंग करने के बजाय ये देखें, दिस इज अ कैट, दिस इज अ बॉय, दिस इज अ क्लॉक, मतलब उसकी आप डिकोडिंग करने के बजाय उनको डिफरेंट, उनको होल वर्ड, मतलब वो चीज करने में, उन्हें उसको ज्वाइन करने में सेंटेंस को दे फाउंड डिफिकल्टी, ठीक है। उनको चीजों को मिसमैच वो कर देते हैं। जब वो राइटिंग करते, बोलते तो वो ठीक है, मुझे पानी ला दो, मेरे साथ बैठ जाओ, खाना खा लो, बट इस चीज को वो जब राइटिंग और रीडिंग में जो बोलते हैं तो उन्हें सही पता नहीं चल रहा होता। तो कई कई टीचर्स शिकायत करती हैं, मेरा ये बच्चा है आपका, ये रीड नहीं सही करता। आपने उसकी बेसिक देखी ही नहीं, ठीक है, साउंड उसकी सारा कुछ ठीक है, लेकिन जब रीडिंग पे बात आती है तब पता चलता है ये लेवल्स, ये अपग्रेडिंग लेवल पे फाइंड आउट होती है ये डिसऑर्डर, नॉट एट द बेसिक लेवल, ठीक है। तो इसमें ये बताऊं, जो विजुअल डिसलेक्सिया है ना, वो आप कहें कि विजुअली जो हम चीज़ों को जो देख रहे होते हैं, साउंड्स को, वो नहीं होते जो हम अपने माइंड में परसीव कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम बी, ब देख रहे हैं, हम अपने माइंड में बा नहीं परसीव करें, हम ड, वो बच्चा परसीव करता है। दिस इज यू कॉल्ड द डिसलेक्सिया। तो अगर इसकी डीप रूटेड जाया जाए तो आई थिंक सो आप इतना गहराई में इसको चले जाएंगे लेके कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कहाँ तक इस चीज को आप मिसमर्च करते हैं। लोग इतनी ज्यादा इस चीज को मिसमर्च करते हैं कि चीजों के साथ, मुख्तलिफ डिसऑर्डर्स के साथ। तो फिर उसके बाद जो आ जाती है हमारी कॉजेस के बाद,
साइंस एंड सिम्टम्स आ जाते हैं, ठीक है। कॉजेस के बाद जो हमारी चीज आ जाती है, दिस इज यू कॉल्ड द साइंस एंड सिम्टम। अब अगर साइंस एंड सिम्टम्स देखे जाएं तो मैंने आपको वही कहा कि बच्चा जब शुरू में बोलना शुरू करता है, ठीक है, जब साउंड्स निकालना शुरू करता है, उसकी साउंड्स की मतलब है कि जब बैबलिंग करता है, जब वर्ड्स से वो सेंटेंस की तरफ आता है, और सेंटेंस से फिर उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके वो जो है वो जब बोलने साउंड की तरफ आता है, तब तो वो सही चल रहा होता है, हम कहते हैं बच्चा ठीक है, हर लिहाज से ठीक है। लेकिन जब इसके बाद बारी आ जाती है हमारी साइन पहचानने की, तो आपकी कहाँ पे आ जाती है, जब आप बच्चे को कहेंगे रीड आउट, जब एक पेरेंट्स घर में कहेंगे, फिर वो परेशान होकर टीचर के पास जाएंगे, टीचर भी बुलाएगी, आपका बच्चा सही आपका बच्चा रीड आउट नहीं कर रहा, आपको एक सेकंड की भी देर किए बगैर उसको सबसे पहले आप एक अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल से रब्ता करें, स्पीच थेरेपिस्ट के पास लेके जाएं। देखिए मुख्तलिफ थेरेपीज होती हैं, ठीक है, और सबसे बड़ी आपकी, मैं आपको पहले भी बताया है, फैमिली थेरेपी होती है। आप बच्चे से ज़्यादा बात करें। देखें, आप जितना बच्चे से बात करेंगे किसी भी चीज़ के बारे में, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर आप बच्चे को कहते हैं, अगर आप बच्चे को बताते हैं एक ऑरेंज बॉल के बारे में कि दिस इज अ ऑरेंज बॉल, और आप एक ऑरेंज को कट करते हैं, तो इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें ये डिफरेंस है कि आप जो चीज़ बता रहे हैं वो चीज़ आप उसको ऑरेंज, अगर एक ऑरेंज चीज़ दिखा रहे हैं तो उस ऑरेंज को डिफरेंट बिहेवियर पैटर्न में यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, उस बच्चे को ये पता चलेगा ये जो डी है, ठीक है, ये डी और बी को मिसमैच नहीं करना, इसका ये मतलब है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ऑरेंज बॉल बच्चे को कह रहे हैं दिस इज एन ऑरेंज बॉल, और साथ आप एक ऑरेंज को कट कर रहे हैं, मींस आप ऑरेंज को डिफरेंट बिहेवियर्स में यूज कर रहे हैं, बिहेवियर पैटर्न में। तो आप क्या कर रहे हैं, इस तरह हेल्प कर रहे हैं बच्चे की चाइल्ड लर्न वर्ड्स, वर्ड मीन, हाउ वर्ड वर्क, जो अल्फाज का मतलब है उस तरह अल्फाज काम भी कर रहे हैं। सिर्फ ये नहीं हो रहा कि ऑरेंज एक ही तरह यूज होता है, दिस इज ऑरेंज, दिस इज ऑरेंज, नो, ऑरेंज को कट भी करते हैं। अगर ऑरेंज बॉल है तो वो ऑरेंज सिर्फ वही ऑरेंज नहीं है, वो ऑरेंज डिफरेंट तरीके से डिफरेंट पर्सपेक्टिव में यूज हो सकता है, तो उसकी उनको भी हम हेल्प आउट कर सकते हैं। साइंस में क्या आता है, ट्रबल स्पेलिंग और राइटिंग, यानी कि उनको स्पेलिंग, जैसे मैंने खा एट, अब बुक में लिखा हुआ है दिस इज अ कैट, वो खा को ड, देखिए, खा और डा में भी सी डालते हैं, पहले सी बनाते हैं, हम कहते हैं मेक अ सी गो अप एंड डाउन, ठीक है। अब वो खा और डा को मिक्स करेगा, जैसे ए और सी है, ए में भी पहले मेक अ सी, मेक अ पैटर्न, ज्वाइन द लाइन एंड मेक अ लूप, ठीक है, हम इस तरह बताते हैं बच्चे को, तो वो चीज वो मिसमैच कर देगा, ठीक है। कंफ्यूजिंग लेटर्स और वर्ड्स, यानी लेटर और वर्ड्स, देखिए हम सबसे पहले बच्चा जो प्री स्कूल में होता है ना, हम उसे फोनिक्स सिखाते हैं, जब बच्चे को फोनिक्स आ जाती है तो हम उसे फिर वर्ड्स पे लेकर आते हैं, सेंटेंस पे, देन रीडिंग होती है, फिर हम उसे रिकग्नाइज कराते हैं, वेयर इज जॉन, वेयर इज मॉम, वेयर इज, हम उसको प्ले कार्ड के जरिए, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट स्टेप पे जब हम रीड आउट कराते हैं तब ये रिकग्नाइज होता है कि दिस चाइल्ड इज वीक इन रीडिंग, उसे नहीं समझ आ रहा, उसे सारे उनका मजाक बनाते हैं, वो अलोन रहना पसंद करते हैं, पब्लिक स्पीकर नहीं हो सकते, क्योंकि वो जब मिसमैच करते हैं, पब्लिक स्पीकिंग में स्पीकिंग करनी पड़ती है, तो वो जब देखते हैं वर्ड्स, जब वो उनके सामने को पेज ला के रखा जाता है, वो उसे रीड आउट नहीं कर पाते, तो लोग उनका मजाक बनाते हैं, ठीक है। दे आर नॉट अ पब्लिक स्पीकर मोस्टली, ठीक है, दे वॉन्ट टू सिट अलोन। इनका स्लो लर्निंग स्पीड होता है, इनका जो पैटर्न होता है ना पढ़ने का, आप कभी भी रीडिंग में आपने कभी देखा होगा बच्चे को, दिस इज, वो जब स्टार्ट करता है तो ऐसे बोलता है, लेकिन अगर फिफ्थ ग्रेड तक भी बच्चा ऐसे ही बोल रहा है, फिफ्थ ग्रेड में बच्चे को फोर्थ ग्रेड में दिस इज अ पेन, दिस इज एन ऑरेंज, आई वॉन्ट दैट
ऑरेंज मतलब वो चीज आपकी फ्लुएंसी में होनी चाहिए, लेकिन आपकी जब वो चीज फ्लुएंसी में नहीं है, इट मीन्स उसको कोई प्रॉब्लम है। देखिए बच्चा मेंटली अपसेट है तो वो फ्रस्ट्रेटेड होगा, जब वो फ्रस्ट्रेटेड होगा तो वो एग्रेशन शो करेगा। आप देख रहे हैं कि उसके बिहेवियर्स में फर्क आ रहा है, तो आप फौरन कंसल्ट करें। सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट के पास ऑफ कोर्स जाते हैं हम लोग। यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे फॉर अगर वो टेंट्रम शो करे, बट स्पीकिंग और रीडिंग के लिए आप अपने स्पीच पैथोलॉजिस्ट से राब्ता करेंगे, एसएलपी से, स्पीच एंड लैंग्वेज का जो मीडियम होता है, ठीक है, ताकि वो आपको बताएंगे कि व्हाट वेयर इज द प्रॉब्लम। सबसे पहले तो आप टीचर के पास जाएं, काउंसलिंग होनी चाहिए कि अगर ये बच्चा एक शोबे में अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं। देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप भी एक चीज़ में अच्छे हैं। उर्दू उर्दू हम उर्दू बोलते हैं, हम मोस्टली लोग ड़ा बोलते हैं, उर्दू आपने देखा होगा, इट्स अ उर्दू। अगर हम देखें तो हम कई लफ्ज़ हम भी गलत बोल रहे होते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को, इन सारी चीज़ों को कवर अप करने के लिए एक, देखिए ये तो एक नॉर्मल पैटर्न मैंने बताया, लेकिन अगर एक एबनॉर्मल पैटर्न हो रहा है तो प्लीज़ कंसल्ट योर स्पीच थेरेपिस्ट। आप उनकी थेरेपीज कराएं, उनको बच्चों में ले जाके उनका मजाक बनता है तो दे फील अनकंफर्टेबल, ठीक है। फैमिली में उनका मजाक मत बनाएं, उनके साथ कोऑपरेट करें। अगर उन्हें रीडिंग और राइटिंग में मसला है, उन्हें आर्ट की चीजें ला के दें, जिस चीज में वो ग्रूम करना चाहते हैं, ठीक है। तो उनका जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल होता है बहुत कम होता है। देखिए जब वो किसी के साथ लिख रहे होते हैं, उनकी जब कॉपी को किसी चीज के साथ मैच किया जाता है, किसी ये तुमने क्या किया है, तुम्हारी टीचर उसको पनिश करके खड़ा कर देती है, ही और शी फील लोनली, तो टीचर को ऑब्जर्व करना चाहिए। एक बच्चा एक दिन खड़ा है, 2 दिन खड़ा है, 3 दिन खड़ा, अगर लगातार मुसलसल वो खड़ा हो रहा है तो देर इज सम प्रॉब्लम। तो वहां पे भी काउंसलर होने चाहिए स्कूल काउंसलिंग के लिए। तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम लोग निगलेक्ट करें आम की ज़िंदगी में, और ऐसे बच्चे जो इन लर्निंग डिसेबिलिटीज़ का शिकार हैं, जो फोनिक्स को सही नहीं पढ़ पा रहा, जो रीडिंग नहीं कर पा रहा, जो स्पीच को नहीं सही अदा कर पा रहा, तो वो उसमें कोई प्रॉब्लम है, वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। और फिर ऐसे बच्चे आगे जाके फिर अपने लिए भी, सोसाइटी के लिए भी, और पूरे फैमिली के लिए एक जो आप कहते हैं प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक है। वो अपनी अपनी जात में अपने सेल्फ को हार्म कर रहे हैं। देखिए वो एक तो मेंटल हार्म तो हो रहे हैं, बट उनका एक सेल्फ हार्म हो रहा है। प्लीज इस चीज को जज करें, सोसाइटी रियलाइज इट। फिर हम अगर नेक्स्ट पे आ जाएं तो हमें पता चलेगा कि हाउ डिसलेक्सिया इज डायग्नोस्ड। देखिए डिसलेक्सिया जो होता है, हम उसको कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम देखा जाए कि हमने डिसलेक्सिया को डायग्नोस करना है, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि इसको हम किस तरह पहचान सकते हैं, इसको किस तरह डायग्नोस कर सकते हैं, तो ये हमें सबसे पहले इस चीज की अवेयरनेस होनी चाहिए कि बच्चा कहाँ पे क्या गलती कर रहा है, किस जगह पे वो गलत है। अगर बच्चे की स्पेलिंग मिस्टेक्स ज़्यादा हैं, देखिए इसमें भी फॉर्म्स होती हैं। कुछ लोग फोनोलॉजिकल, मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स बताई हैं, इसमें फोनोलॉजिकल जो डिसलेक्सिया है यानी फोनिक्स प्रॉब्लम है, आप उस पे काम करो। सरफस लेवल पर है, यानी कि आप डिकोडिंग नहीं कर रहा, बच्चा स्पेसिफिक वर्ड नहीं फाइंड आउट कर रहा, पूरा पूरा वर्ड बोल रहा है और वो मिसमैच करके बोल रहा है, ठीक है। आप एक डिफिकल्ट, वो एक वर्ड बोलता है डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस बोलता है, या आप कह दें वो बोलता है क्लॉक, तो वो डिकोडिंग के बजाय ख ल ओ खो, मतलब वो चीज को वो पहचान ही नहीं पा रहा कि क्या लफ्ज है, मैंने उसको किस तरह बोलना है। ऑडिटरी में होता है कि आप उस चीज को सही साउंड ही नहीं कर पा रहे हो, जो टीचर बोल रही हैं कि ये ड है तो वो बा सुन रहा है, उसके माइंड में वो ब चल रहा है, नॉट ड। टीचर कहती है ल तो वो जा सुन रहा है,
तो ये चीज आपको रिकग्नाइज करनी है कि वो चीज जो मदर पढ़ा रही हैं या टीचर पढ़ा रहे हैं कि वेयर इज द बेसिक प्रॉब्लम, ठीक है। फिर उसके बाद अगर विजुअली देखा जाए तो वो विजुअली ही वर्ड्स को रिकग्नाइज नहीं कर रहा, तो डिफरेंट, जैसे रैपिड नेमिंग एकदम से जो आप कहें कि उनके लिए चैलेंजिंग होता है किसी नाम को पहचाना, आप बच्चे से कहेंगे व्हाट इज दिस, वो थोड़ी देर चुप रहेगा, वो नहीं बोल पाएगा। आप कहें दिस इज अ क्वेश्चन, कहें व्हाट इज दिस, वो थोड़ा सा स्टॉप कर जाएगा, दिस इज, वो क्वेश्चन को मिला के नहीं बोल पा रहा, उस चेयर को मिला के नहीं बोल पा रहा। तो आप कहें देर इज सम प्रॉब्लम, आप एकदम ना कहें ही इज ऑटिस्टिक, ही इज फलाना। आप उस चीज को रिकग्नाइज करने के लिए प्लीज गो फॉर दी फर्दर असिस्टेंट, कि आप अपने तरीके से घर बैठ के उसको असेस ना करें प्लीज, आप उसको जाके उसकी ट्रीटमेंट कराएं उसकी, क्योंकि बच्चे फिर सफ़र करते हैं और यही बच्चे आगे जाके सेल्फ हार्म करते हैं, यही बच्चे एडिक्शंस का शिकार होते हैं। आपने देखा होगा, फ्रस्ट्रेटेड हो गया जी, उसको डिप्रेशन हो गया, वो स्ट्रेस में चला गया, उसको ये बीमारी हो गई, वो उठता ही नहीं, वो कहीं जाता ही नहीं, उसे जॉब में इंटरेस्ट नहीं, क्यों, वाई? बिकॉज आपने उनके ये वाले जो टास्क हैं वो इग्नोर किए, कि जब वो रीड कर रहा है, जब देखे एक बच्चा रीड ही नहीं सही कर पाएगा, उसका उसका जो आपके लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो नहीं सही चल रहा, आप सबसे पहले एक स्कैन भी होता है, अगर आप जाएंगे ना साइकोलॉजिस्ट के पास तो वो ये भी रिकमेंड करते हैं कि सबसे पहले ऐसे जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के बच्चे होते हैं उनका स्कैन करने को कहते हैं, ताकि उनका फिर आप देखें कि किस लेवल पर है, इज इट लो, माइल्ड, या माइल्ड है, मिड पर है, या बहुत सीवियर है। देखिए अगर तो माइल्ड है तो आप उसको रिकवर कर सकते हैं, जस्ट कि वो थोड़े से लफ्ज को मर्ज कर रहा है, बच्चा शुरू में थोड़ा सा हेजिटेट करता है, मिड लेवल पर है वो ज्यादा, मतलब उस चीज को मर्जिंग शुरू हो गई है उसकी, लेकिन जब एक्सट्रीम सिवियर लेवल पे वो ज्यादा ही मर्जिंग शुरू कर देगा और वो चीजों को कंबाइन नहीं कर पाएगा, लफ्जों को नहीं जोड़ सकेगा, तब आपको फिक्रमंद होना चाहिए, क्योंकि आजकल इतनी अवेयरनेस आ गई है कि यू नो के हाउ टू डायग्नोज इट। तो इस चीज में आपको सबसे पहले, जाहिर है कि आपने जिस तरह यहाँ लिखा है कि फैमिली एंड मेडिकल हिस्ट्री रिव्यू, फॉर एग्जांपल वही जेनेटिक कॉज आ गया, देखिए वो बायोलॉजिकल कॉज आ गया कि जेनेटिक्स में कितनी ये चीज इंपॉर्टेंट है। देखिए जीन्स सारी बीमारी, सारी कहते हैं ना कि बीमारियों की रूट कॉज है, आपकी जीन्स में शुगर है, आप आप अवेयर हो जाते होते हो कि नहीं, आप हो जाते हो ना। तो इसी तरह अगर मदर को कोई भी ओसीडी है, वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये साइकोलॉजी से रिलेटेड है। अगर मदर को इस तरह की कोई भी डिसऑर्डर है, एचडी है, ओसीडी है, या बाइपोलर है, तो बच्चा ज़रूर कोई इस तरह की चीज़ों का शिकार हो सकता है, मेंटल डिसऑर्डर का। तो प्लीज़ अपने मदर भी थोड़ी सी अवेयर रहें, और मेडिसिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सारी मॉम से मेरी ये है रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे की फीटल ग्रोथ के लिए, ठीक है, आप अपनी डाइट अच्छी रखें, न्यूट्रिशन पे ध्यान दें, ताकि आपका बच्चा एक हेल्दी बच्चा हो, दुनिया में आए और एक हेल्दी माइंड के साथ आके ग्रो अप करे। फिर हम नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि देखें हर चीज़ की जब आप बात करते हैं ना कि आप कोई भी आपको बीमारी भी है, इलनेस है, ये तो डिसऑर्डर है, मैंने पहले भी बताया था, इट्स नॉट रिकवर नहीं हो सकता सिवाय जो वर्चुअल चीज़ें हैं, ठीक है, जो सोशल मीडिया से रिलेटेड हमें हो जाती हैं एग्रेसिवनेस, बट इसको हम मैनेज कर सकते हैं। देखिए मैनेज करने के लिए हमारा फैमिली के थेरेपी सबसे बेस्ट थेरेपी होती है कि आप पहले उस चीज को पहचानो। आप देखिए फ्रॉम बर्थ आप अपने बच्चे से बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, वेव कर रहे हैं। देखिए बात सिर्फ ये नहीं होती कि अपने मुंह से कुछ लफ्ज निकाले आप कहें कि बातें हो रही हैं, नो, वेविंग, बैबलिंग और यूजिंग वर्ड्स। देखिए बात, आप बच्चे को कहते हैं हाय, जब
आप फादर घर में दाखिल होता है, कहते हैं हाय, तो उसके हाथ में लाता है जब छोटा होता है बच्चा, वो उस टाइम सिर्फ रिसीव कर रहा है, उसकी परसेप्टिव लैंग्वेज इंक्रीज हो रही है। ठीक है, एक्सप्रेसिव बाद में होती है, सबसे पहले आपके माइंड में परसीव करती हैं चीजें, फिर आप उसे एक्सप्रेस करते हैं। तो आप उसको इस तरह सपोर्ट कर सकते हैं। ये तो आपको बाद में पता चलेगा जो डिसऑर्डर्स हैं, क्योंकि ये एज सच वो डिसऑर्डर नहीं है जिसमें बच्चा उठ नहीं सक रहा, उसकी मसल्स में कोई कमजोरी है, या वो टेंट्रम्स शो कर रहा है, वो चीजें उठा के फेंक रहा है। नो, दिस इज नॉट लाइक दैट। वो सोशली आइसोलेटेड जरूर होगा, क्योंकि वो जब अपने पीयर ग्रुप से, अपने क्लासमेट से बोल नहीं पाएगा, वो अपनी स्पीच को जब रीडिंग नहीं कर पाएगा, जब उसके नंबर कम आएंगे, वो राइटिंग नहीं कर, उसके यहाँ पे इश्यूज आ जाएंगे, उसके मार्क्स नहीं आएंगे, 0 0 0 फेल, ये वो कम मार्क्स, हर तरफ से ब्लेमिंग, तुम तो कमजोर हो, तुम तो कुछ नहीं कर सकते। नो, आप देखिए कि आपका बच्चा कौन से लेवल पे अच्छा है। कई बच्चे आपने देखा है कि आर्ट में बहुत अच्छे हैं, कई आर्टिस्ट ही आपने देखा होगा, मे बी वो किसी चीज में भी अच्छे ना हो, उनका साइंस बहुत वीक हो, उनका उर्दू बहुत वीक हो, उनकी इंग्लिश कुछ, उन्हें बिल्कुल भी इंग्लिश ना आती हो, बट लेकिन आपने ये नोट किया है कि वो उनकी आर्ट कितनी अच्छी है। आपने तारे जमीन पे देखा है, उस बच्चे ने आर्ट में compete किया है। क्यों? क्यों? वो म्यूजिक में इंटरेस्ट ले रहा है, वो फन में इंटरेस्ट ले रहा है। कोई बात नहीं, देखिए जहां जिस बच्चे की कैटेगरी लाए कर रही है, आप उसको इन्हांस करो। आप उसको बीच में बिल्कुल वो आपने उसको सप्रेस कर दिया, आपने बच्चे की, आपने कह दिए कि नहीं, ये बच्चा डॉक्टर है, मैंने इसे डॉक्टर ही बनाना है, चाहे वो डॉक्टर बन सकता है चाहे वो नहीं बन सकता, उसके माइंड में ऐसा डाला है कि उसने डॉक्टर बनना है। फॉर एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, अब वो डॉक्टर नहीं बन पा रहा, वो कोशिश किए जा रहा है, स्ट्रगल किए जा रहा है, वो नहीं लिख पा रहा, वो नहीं बन पा रहा, उसे नहीं अंडरस्टैंडिंग हो रही, तो वो एंड में जाके क्या होगा, ही और शी गॉट फ्रस्ट्रेटेड। और आपने देखा होगा, खुदकुशी के वाकये आपने सुने होंगे, उसने उसको मार दिया, उसने अपने आप को सेल्फ हार्म कर दिया। तो क्यों? कि उसने अपने फादर को मार दिया, या इसको मदर को मार दिया, या बहुत ज़्यादा ऐसे साइकोलॉजिकल फिर प्रॉब्लम्स आ गए, स्ट्रेस में हो गया, उस डिजीज़ का शिकार हो गया, मेंटल इलनेस हो गई, हॉस्पिटल में दाखिल हो गया, रिहैबिलिटेशन सेंटर चला गया। तो व्हाट इज दिस? ये हम अपनी अपने आप को कंट्रोल पहले करें, अपनी सोसाइटी को कंट्रोल करें कि ये बच्चे नॉर्मल होते हैं, ये इनका इंटेलेक्चुअल पे कोई ताल्लुक नहीं होता। अगर एक बच्चा स्कूल में फेल हो रहा है, वो राइटिंग नहीं कर पा रहा, वो स्पीच पे ध्यान नहीं दे पा रहा, वो उसको प्रॉब्लम है, तो उसको आर्ट की तरफ लेकर आए, आप उसको दूसरी तरफ मर्ज ना करें। तो दूसरी चीज है, अच्छा, नेक्स्ट हमने देखना है ट्रीटमेंट। अगर हम ट्रीटमेंट की तरफ आए तो इसमें एजुकेशनल थेरेपी होती है, ठीक है, और स्पीच थेरेपी, जैसे मैंने कहा एसपी, ठीक है, और इसमें साइकोलॉजिकल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, मोटिवेशन ज़रूरी है, पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट। सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था कि पेशेंस, पेशेंस इज़ अ की फैक्टर ऑफ ऑल, कहते हैं ना कि मैटर्स, आपके जितने फैमिली मैटर्स हैं उनके लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ बी पेशेंस विद दैट किड, दे नीड योर सपोर्ट। अच्छा, अब मैं बात करती हूँ एज ए डीएक्सन मेंबर, नहीं बात कर रही, ये एक WHO की प्रूफ बात है कि DXN ने इज अ मशरूम, उसने अपना बहुत अच्छा रोल प्ले किया है ओवरऑल सारी चीज़ों को कोप अप करने में। ठीक है, आपकी ये कोई ये नहीं है कि मैं DXN की मेंबर हूं तो आई प्रमोटेड दैट, नो, ये चीज़ प्रूफ है कि आप इन चीज़ों को यूज़ करके अपनी लाइफ को, अपनी बीमारी को कवर अप कर सकते हैं। देखिए, गारंटी तो अल्लाह की ज़ात देने वाली है कि आपने कितना अरसा जिंदा रहना है, या कितनी आपने सरवाइव करना है, बट लेकिन अगर आप DXN का रोल देखें तो इट्स अ वास्ट रोल इन सपोर्टिंग ब्रेन हेल्थ में। ठीक है, ब्रेन फंक्शन में, कंसंट्रेशन एंड फोकसिंग में, नर्व हेल्थ में, इमोशनल बैलेंस में, सारे स्ट्रेसर्स में, दीज आर ऑल द ब्रेन स्ट्रेसर्स।
उसमें आपको किस तरह सपोर्ट करता है। DXN आपकी ब्रेन हेल्थ में बहुत सपोर्टिव है। अब DXN की कौन सी ऐसी आप कहें कि चीज़ें हैं जो आप मशरूम्स हैं जिन्हें आप यूज़ करके आप जो है ये जो डिसलेक्सिया के हैं डिसऑर्डर्स, इनको थोड़ा सा कवर अप कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, ताकि ये हेल्दी लाइफ गुजार सकें। इसमें सबसे पहले लॉयंस मेन है। मैंने पहले ये ऑटिज्म में भी बात की थी कि लॉयंस मेन बहुत बूस्ट अप करता है आपकी मेमोरी को। जाहिर है जब आपकी मेमोरी स्ट्रांग होगी तो आपको जब आप रीड आउट करोगे कोई चीज़, आप बोलोगे, आप स्पीच करोगे, आपसे जिस तरह मैंने कहा था कि एकदम रैंडम नेमिंग नहीं होती। रैंडम नेमिंग डिसलेक्सिया में ये बहुत प्रूफ है कि लॉयंस नेम जो है मेन जो है सॉरी लॉयंस मेन जो है वो एक बेटर रोल प्ले करता है। ठीक है, उसके बाद DXN स्पायरुलिना, ये तो बेस्ट कहते हैं ना कि ये फॉर ऑल द कहते हैं डिजीजेस। ठीक है, जिस तरह कहते हैं ना कि मैं नहीं कहती कि शहद आप खाएं, इसमें तमाम बीमारियों का इलाज है। तो इसमें तमाम न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपको हेल्दी रखने में, आपको आप कहें कि आपको प्रोवाइड एसेंशियल विटामिन्स और मिनरल। ये आप डाइटिशियन के पास एज अ डाइटिशियन, एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, आप जहाँ मर्जी जाएं, आपको स्पायरुलिना इज द बेस्ट ऑप्शन अगर आपकी डाइट में कोई ना कोई कमी है। ठीक है, उसके बाद ऋषि मशरूम, आपने कहा ये सारी DXN मोस्टली प्रोवाइडेड ये मशरूम की चीजें। देखिए इट्स अ मशरूम, तो इसमें देखिए आपकी ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं जाएगी ना, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी तो आपका ब्रेन वर्कआउट नहीं कर रहा। ठीक है, सबसे पहले ऑक्सीजन की कमी को ऑक्सीजन सप्लाई करता है। देखिए हम CO2 रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, तो ऑक्सीजन की सप्लाई आपकी पूरी बॉडी में होती है। वो ब्रेन में अच्छी तरह से हो तो आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी, आपकी थिंकिंग पावर इंक्रीज होती है। ठीक है, उसके बाद अगर आप आ जाए हैं लाइफस्टाइल एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, आपकी लाइफस्टाइल और न्यूट्रिशन किस तरह अफेक्ट करती है अगर आपको ये डिसऑर्डर है लर्निंग डिसेबिलिटी। इसमें आपकी बैलेंस डाइट लें। देखें वेजिटेबल्स तो नट्स, ओमेगा 3, ठीक है, वेजिटेबल्स। उसके बाद स्क्रीन टाइम, जाहिर है ये तो हर जगह है कि आपको हाइप जो क्रिएट करती हैं चीज़ें, जो आपको फ्रस्ट्रेटेड करती हैं, स्ट्रेस देती हैं, अगर आप खुद भी कई दफ़ा एक एक घंटा बैठ के देखेंगे तो यू फील अनकंफर्टेबल, आपकी आइज़ पे इफेक्ट होता है। तो आप अपने बच्चों को अगर सही तरीके से उनका पोस्चर, उनकी स्पीच, उनका सारी बॉडी अगर आप सही रखना चाहते हैं तो प्लीज़ स्क्रीन टाइम को रिड्यूस करें। उनको ज़्यादा से ज़्यादा गेमिंग करने का, बाहर वो वाली पजल्स वाली गेम जिनमें मेमोरी ज़्यादा यूज़ हो, क्योंकि इनकी मेमोरी ऑफ कोर्स जब इन्हें इन्हें चीज़ का याद नहीं रहता, ये फोनिक्स को मिसमैच कर देते हैं। तो इस तरह के पजल्स इनके साथ किए जाएं जिसमें ये लोग जो है इनकी मेमोरी ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो, यूज़ हो, एनकरेज मिले इन्हें रीड करने में। ठीक है, पॉजिटिव इन्वायरमेंट घर का, मैंने पहले भी कहा है कि फैमिली थेरेपी इज़ द बेस्ट थेरेपी इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये वर्ड ये साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। आपको हम 40 मिनट्स डील कर रहे हैं बट आपने फैमिली में अगर इसे सही ट्रीट नहीं किया तो देर इज नो यूज ऑफ दिस थेरेपी। किसी भी थेरेपी का, किसी भी बीमारी का, किसी भी डिसऑर्डर का कोई इलाज नहीं है। आप अगर एक डाइटिशियन के पास भी जाएं तो वो आपको कुछ दवाइयाँ रिकमेंड कर देते हैं, आपको अच्छी डाइट बताएंगे, डाइट के साथ सप्लीमेंट्स दे देंगे जैसे, लेकिन आपने फैमिली में आके जो आपने खाना खाना है, ठीक है, आपकी फैमिली, आपको एक बूढ़ा बंदा है, ठीक है, उसको शुगर है, उसको डाइट ने कंट्रोल कर लिया, ठीक है, और उसको कुछ प्रोडक्ट्स ने कंट्रोल कर लिया, बट लेकिन अगर फैमिली ने उसको सपोर्ट नहीं किया, उसके साथ इमोशनली नहीं बैठे, देखिए ये सारी चीज़ें स्ट्रेस आउट से भी होती हैं। ठीक है, अगर आपको वो अच्छी डाइट नहीं दे रहे, अगर आपके साथ वो कॉपरेट नहीं, जो घर में खाना बन रहा है वही दे रहे हैं, आप अपनी डाइट का इसलिए ख्याल रख सकते हैं कि कम से कम ऑयल वाला कहते हैं खाना खाएं। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो उस चीज़ में आपकी फैमिली हर चीज़ में इन्वॉल्व होती है, तो प्लीज़ फैमिली को हर चीज़ में कंट्रीब्यूट करना चाहिए।
तो इसका कंक्लूजन एंड में ये निकला है कि डिसलेक्सिया जो होता है मैनेजेबल होता है व्हेन अंडरस्टैंडिंग पेशेंस एंड सपोर्ट, आपकी सपोर्ट के साथ, आपकी पेशेंस के साथ, आपकी अगर आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आई थिंक सो डिसलेक्सिया इज नॉट अ मेजर डिसऑर्डर। बहुत ज़्यादा आप कहें कि बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर में काउंट नहीं होता। इसको हम कवर अप कर सकते हैं। ये बच्चा एक नॉर्मल और हेल्दी लाइफ में आ सकता है। अगर ये रीडिंग नहीं कर पा रहा तो आप अलग-अलग वर्ड्स के साथ इसे साउंड सेलेबल बोलते हैं। जैसे जैसे आप बोले हेजिटेशन तो है सी टे शन, आप आहिस्ता आहिस्ता वर्ड्स करके इसे बताएं। है जी, आहिस्ता आहिस्ता आप देखिए स्पीच भी आप सिखाते हैं ना, आप इस तरह सिखाते है, सिलेबल आप डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। सी टेशन है, सी टेशन है, सी। उसके बाद आप फास्ट शुरू हो जाते हैं तो वो फास्ट नहीं बोल पाता, तो आप इस तरह उसे स्पीच सिखाते हैं। एक हफ्ता आप यकीन करें इस चीज में बहुत पेशेंस चाहिए होती है, बट पेशेंस कहते हैं ना कि आपको एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का आउटपुट देता है जिसका आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप पेशेंस रखें ना ऐसे बच्चों के साथ तो वो देखें कि कितने अच्छे ग्रूम हो जाएंगे और वो ज़िंदगी के हर फील्ड में अपना नाम भी पैदा कर सकते हैं। और वो ये बहुत स्पेशल चाइल्ड होते हैं। स्पेशल चाइल्ड के दो मतलब होते हैं, एक स्पेशल होते हैं, एक स्पेशल, यानी कि वाकई ही एक स्पेशलिटी रखेंगे। एक स्पेशल को हम कहते हैं यार ये स्पेशल स्कूल है, इसको तो स्पेशल स्कूल में डाल दो। नो, ये स्पेशल चाइल्ड है, अल्लाह की तरफ से गॉड गिफ्टेड चाइल्ड है। प्लीज इस गिफ्ट की कदर करें। और नेचुरल सप्लीमेंट्स जैसे डीएक्सन के कैन हेल्प इन ब्रेन नरिशमेंट और इमोशनल स्टेबिलिटी। ये सारी चीज़ें अगर आप माइंड में रखें तो मेरा ख्याल है कि आप बहुत हद तक इस डिसलेक्सिया को पहचान भी लेंगे, क्योंकि इससे फिर फर्दर और डिसऑर्डर जन्म नहीं लेंगे, इससे और मिसमर्ज नहीं होंगी आपके डिसऑर्डर्स। अगर आपके शुरू के लेवल्स में, जब रीडिंग लेवल्स में बच्चा डिफिकल्टी करे, प्लीज रिकग्नाइज इट। ठीक है, तो एंड में ये कहूंगी थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माय स्पीच। ठीक है, my workshop, my webinar about dyslexia. And thanks for ma'am and again sir for organizing this special जो है ना कि slides for me. तो anyone ask, if anyone has any question और आप प्लीज मुझसे कर सकते हैं। Only 1 minute left, then please ask any question if you have any. Thank you very much, Ma'am Tuba. This was a very beautiful speech and very beautiful presentation. And you explained everything in an easy language and very well explanation. So we are thankful to you.